friends, welcome on Yourpedia, and today I'm with one of my students, Atinder, and Atinder visited me in office today, so I took it as opportunity to interact with him. And friends, this is not my first interaction with Atinder. I've already interacted with Atinder when he was pursuing his PhD from IIT Kanpur, and after completion of PhD, now he explored the opportunities abroad. Presently in Austria, and he's doing job there. And I have already interacted once with him online, but because he came to visit me, I thought it appropriate to discuss with him. So our interaction will be more in the direction of what are the opportunities for all of you, those who do PhD from Indian universities, premium universities like IITs वगैरह से आपने PhD किया, how you can explore opportunities abroad. Many of my students keep on asking that, sir, if we do PhD from India, तो हमें बाहर जॉब कैसे मिल सकता है? ये पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जो आई थिंक अतिंदर का अपनी जर्नी उस डायरेक्शन में है. एंड सेकंड, व्हेन यू आर डूइंग मास्टर्स, व्हेन यू डू पीएचडी इन इंडिया, so during that time when you are already student of Indian universities, how you can do internship so that later on you can convert those internships into opportunities. वो opportunities हम कैसे explore कर सकते हैं, and the country in which he is doing job, वो country रहने के लिए कैसे है. जैसे आप लोगों की queries होती हैं कि PR या परमानेंट अगर हमें वहां पे रहना है, what kind of country is Germany, what kind of country is France or Sweden or other countries. So we will get to know something about that also. So Atinder, thanks a lot and welcome to Yourpedia. Thank you for having me, sir. Yeah, and Atinder, though we have interacted earlier also on this very platform, but I'll request you to very briefly tell about your journey, which part of Punjab and which college you graduated, and उसके बाद आपने IIT कानपुर कब join किया, maybe timeline, because many of the students will be making some kind of linkages. So timeline कब से कब तक आपने PhD किया, और PhD के बाद से लेके अब आप जहाँ job कर रहे हैं उसको अगर briefly आप बताएं. Okay, sir. So, sir, I started my BTech in Punjab. Okay. Banda Singh Bahadur Engineering College, Fatehgarh Sahib. तो 2009 से 13 तक मैं वहीं पे था. After that, I spent 1 year with you, sir. Yes. And I took 1 year off from studies and सर के साथ बैठ के गेट की तैयारी करी. फिर मेरे को IIT कानपुर में सर डायरेक्ट PhD ऑफर हो गया. Which year that was? 2014. Yes, okay. sir. 2020 तक सर मैं अपना थीसिस सबमिट कर चुका था. और 21 और 22 स्टार्टिंग तक मैं वहीं पे सर पोस्ट डॉक कर रहा था. ओके. गौतम विश्वास सर की लैब में. ओके. हाउ मेनी मंथ्स ऑफ पोस्ट डॉक यू डिड? सर वहां पे सर नियरली 1 ईयर के आसपास की. अच्छा. उसके बाद सर मेरे को IIT दिल्ली में 1.5 ईयर की पोस्ट डॉक मिली सर. ओके. और IIT दिल्ली में ही सर मेरे को एक सीनियर था जो ऑस्ट्रियन कंपनी में जॉब कर रहा था. उसके थ्रू मैंने अप्लाई किया कंपनी में, और वहां पे मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया. तो उसके बाद अभी मेरे को 2.5 साल हो गए ऑस्ट्रिया में काम करते हुए. ओके अतिंदर, आज का जो हमारा इंटरेक्शन है, I have already discussed in detail with you about your PhD work. I have discussed with you about postdoc also. Today's discussion I will do in the direction of कि अगर कोई इंडिया से PhD किया है किसी ने और अच्छा काम किया है, पोस्ट डॉक किया, आपका 2 साल के आसपास पोस्ट डॉक हो गया, उसके बाद मेरे को बाहर जो जॉब्स लेनी है वो उस चीज को कैसे एक्सप्लोर करें. And this answer will be very, very helpful for all the candidate students, those who are doing PhD in India or those who have done PhD in India. Maybe they are working somewhere as faculty or something, और वो बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं. उनके लिए आप बताइए how to travel this. सर किसी भी कंपनी में जॉब लेने के ना सर 2 तरीके हैं. हाँ जी. पहला तरीका है कि उस कंपनी ने एडवर्टाइज किया कि हमें कोई चाहिए पोजीशन हमारे पास खाली है, आप अप्लाई करो, और वो स्क्रूटिनाइज करके आपको कॉल करेंगे. ओके. दिस इज अ लॉन्ग वे. इसमें आपको 1-2 साल भी लग सकते हैं. दूसरा शॉर्टेस्ट वे है, आप अपना जो पुराना कोलीग ढूंढो या फिर अपना जो कॉलेज का कोई कनेक्शन ढूंढो जो उस कंपनी में काम कर रहा है. लिंक्डइन के थ्रू जाओ, उसको बोलो भी मैं आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड हूँ, और अपना रिज्यूमे उसको बोलो भी अपने हायर अथॉरिटीज को फॉरवर्ड करे. दिस इज द शॉर्टेस्ट वे सर. ओके. मैंने इसी तरीके से लिया है सर. मैंने अपने सीनियर को अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड किया. उसने कंपनी में बोला भी ये मेरा जूनियर है, इसको आप थ्रू रेफरेंस आप इंटरव्यू ले लो. राइट. तो विद इन अ वीक सर मेरे को ऑफर आ गया था सर. वीक के अंदर इंटरव्यू भी हो गया, ऑफर भी आ गया. that works very much. So when you say your senior, does that mean आपके रिसर्च लैब
of IIT Kanpur senior, the person who has done, हाँ कहीं का भी सर, कहीं अगर का भी आपका हो। किसी भी IIT कानपुर का सीनियर है तो बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि कानपुर का आप लिंक बन Okay. गया, अच्छा। ओके, अब मैंने IIT दिल्ली में पोस्ट डॉक करी सर, तो दिल्ली और इलाहाबाद दिल्ली में का, भी सीनियर अच्छा। मिल गया, तो उसके थ्रू मैंने, मतलब आपकी फील्ड से रिलेटेड हो और आपका सीनियर कहीं ना कहीं रहा यस हो, यस यस, तो वो किया जा सकता है। यस ओके। एंड जैसे एलुमनी बेस बहुत ज्यादा होता है इन इंस्टीट्यूट्स का, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, इनका पूरा का पूरा बेस होता है, एलुमनी बेस होता है। आपके प्रोफेसर जिनका आप नाम बता रहे हैं, प्रोफेसर विश्वास, बहुत बड़ा नाम है अपने आप एक Yes, फील्ड में वो, तो इनके बहुत से पीएचडी स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सी चीजें होंगी। Yes, तो हाउ समवन हु इज डूइंग पीएचडी फ्रॉम प्रीमियम इंस्टीट्यूट विद सच प्रोफेसर्स कैन यूज दिस पर्टिकुलर लिंकेजेस फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज? मैं आपको इसलिए ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को ये भी हेजिटेशन होता है कि हम किसी से फेवर कैसे मांगे। जस्ट सपोज आई गेट टू नो कि अतिंदर इज द स्टूडेंट ऑफ माय प्रोफेसर, लेकिन मेरे से ग्रैंड सीनियर हैं। अब मेरे को पता है कि अतिंदर इज डूइंग जॉब समवेयर और वो कर रहे हैं, तो हेजिटेशन इन कॉन्टेक्टिंग सच पीपल। यू मे नॉट बी नोइंग मी, आई नो यू बिकॉज आपने मेरे से पहले पीएचडी कर ली है, जो भी है आप मेरे को नहीं जानते हैं, लेकिन स्टिल मेरे को पता है कि आप एक बहुत अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं। तो दिस पर्टिकुलर हेजिटेशन और कैसे अप्रोच करें ऐसे सीनियर्स को? तो सबसे पहले सर पीएचडी में हेजिटेशन नहीं करनी सर, बिल्कुल। आपने पीएचडी कर ली है तो हेजिटेशन साइड पे रखो, ओके, और थोड़ा बेशर्म हो जाओ, ओके, क्योंकि आप ये मान के चलो, जो बंदा आपसे पहले कर रहा है ना, ही विल बी वेरी प्राउड Yes. कि मेरे को मेरे जूनियर ने Approach किया, अप्रोच किया है, तो ही विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा नंबर, अगर आप सेम लैब से हो, सपोज करो गौतम विश्वास सर की लैब से मैं हूं और बंदा है, ही विल बी मोर हैप्पी सर। यस, अगर ऐसा केस Obviously. आता है तो ही विल बी मोर प्राउड कि मेरा एक और जूनियर मेरी लेगेसी को गुरु भाई हो गया वो आपका। हाँ जी सर, राइट, सो दैट शुड बी डन। इट्स वेरी इजी सर, ओके, बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ओके। अच्छा, फिर आप का जो जर्नी आपको रेफरेंस मिला, फिर देन यू वेंट टू ऑस्ट्रिया, सो उसके बारे में बताओ। आप गए, कब आप गए और अब कितना टाइम आपका हो गया और किस फील्ड में काम कर रहे हैं? तो सर अभी मैं जब ज्वाइन किया तो मेरा एफडीएम पे मेरा पीएचडी था सर, पोस्ट डॉक भी एफडीएम मेथड पे था, फाइनल डिफरेंस मेथड पे, सीएफडी में। और इस कंपनी में बाकी सब सॉल्वर अलग अलग मेथड के थे, एक ही सॉल्वर सर एफडीएम में था। राइट। तो उन्होंने इंटरव्यू लिया, मैं उस प्रोफाइल को मैच कर गया सर। ओके। तो इन्होंने मेरे को बोला भी अभी, क्योंकि इमिग्रेशन प्रोसेस में टाइम लगता है, तो 10 मंथ्स मैंने इंडिया में बैठ के वर्क फ्रॉम होम किया सर। उसके बाद 10 मंथ्स के बाद सर 2 साल के ऊपर हो गया मेरे को ऑस्ट्रिया में काम करते हुए। और इन्होंने बहुत हेल्प किया सर। मैं जब जाने वाला था तो सारा खर्चा इन्होंने उठाया, आपको कुछ नहीं करना है। ओके। तो सारा खर्चा, सारा पेपर वर्क सब करके देते हैं सर, ऑस्ट्रियन कंपनी सब कुछ करके देगी, आपको सिर्फ अपना बैग उठा के पहुंचना है सर। दैट्स मतलब इजी वे। ओके अतिंदर, अब देखो पीएचडी करते हैं, यू गेव 6 years ऑफ योर लाइफ इन पीएचडी। आप सुपर स्पेशलाइज्ड आप हुए, फिर आपने पोस्ट डॉक्टरेट में रिसर्च किया, नाउ यू आर इन द इंडस्ट्री। ये जितनी मेरी एफर्ट होती है, आई कैन गेट इनटू द इंडस्ट्री आफ्टर बीटेक आल्सो, आफ्टर मास्टर्स आल्सो, लेकिन पीएचडी के बाद मैं इंडस्ट्री में गया, तो इसका क्या एडवांटेज होता है इतना नॉलेज लेके, इतना अपस्किलिंग करके इंडस्ट्री में एंटर करने का? तो सर मेरे साथ कई लोग हैं जो एमटेक करके काम कर रहे हैं कंपनी में, वो मेरे से हायर पोजीशन पे है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। ओके। मतलब 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, और मेरा अभी 2 साल का एक्सपीरियंस हुआ है इस इंडस्ट्री में। पर आप मान के चलो भी मेरी इज्जत उनसे ज्यादा हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पास जो नॉलेज है सर, वो उनके पास अभी भी नहीं है। जो एक्सप्लोरेशन का मेरे पास, मतलब मैं नए तरीके अपनाता हूँ, मैं नई तरीके से ढूंढना चाहता हूँ। तो पीएचडी आपको सिखाती है कि जिस रोड पे कोई नहीं गया, कैसे उतरना है उस रोड पे, हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम, और नए नए तरीके कैसे ढूंढने हैं। जो कि एमटेक वाला जो स्टूडेंट है, जो इंडस्ट्री में काम भी कर रहा है, वो तरीके नहीं ढूंढ सकता। ओके। तो दैट्स व्हाई यू आर, आपको एक रिस्पेक्ट ज्यादा मिलती है, दूसरा आपका ग्रोथ ज्यादा तेज बढ़ता है सर उनसे। ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन, सैलरीज एंड एवरीथिंग। यस सर, उनका जो प्रमोशन है वो रुक जाएगा कुछ टाइम बाद। पर आप, क्योंकि आप सोचो भी आपके ऊपर एक एमटेक का बंदा है, आप उससे ऑर्डर ले रहे हो, कुछ टाइम बाद यू विल आउट ग्रो हिम, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता भी आप कितनी देर तक एमटेक वाले बंदे से ऑर्डर लेते रहो, उसको पता लग जाएगा भी इसका कैलिबर मेरे से ऊपर है, तो कंपनी खुद ब खुद उसको प्रमोट करेगी आपको। ओके। सो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा लेवल का फर्क है, आपको मतलब मेंटेन करना है भी, ऐसा किसी को ह्यूमिलेट भी नहीं करना है, अच्छा लेवल मेंटेन करता है वहाँ पे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है अभी ऊपर नीचे कोई है, पर फिर भी एक रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा रहती है। अंडरस्टूड। अच्छा अतिंदर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करूंगा आपके साथ, दैट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक रिसेशन। वी नो there's a global recession, we know that recession keeps on coming after a couple of years, maybe decadal एक फिनोमिना है कि 10 साल के बाद रिसेशन होता है, एक जगह दूसरी जगह होता है, और उस टाइम पे इंडस्ट्रीज में से कुछ लोगों को निकाला जाता है। यस सर। My question to you is very straight, does
highly skilled, your academic degree like PhD, is some sort of safety against that recession? I mean, मैं PhD हूं तो मेरे को इंडस्ट्री में से निकालने के चांस ज्यादा है या कम है? ये हाउ डू यू सी दिस ऑल? सर ये बहुत डायनेमिक चीज हो गई सर मेरे लिए। मेरे को लगता है भी किसी टाइम भी आपको निकाला जा सकता है। ओके, ऐसा नहीं है अभी आपके पास पीएचडी, मेरे को लगता है थोड़ा सा आपको सेफ्टी इसके लिए लगती है क्योंकि आप कहीं और ट्राई करना आपके लिए इजी हो जाता है। ओके, आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना आना चाहिए क्योंकि पीएचडी की वजह से अपॉर्चुनिटी ज्यादा आप देख सकते हो, हाँ, देख सकते हैं। लेकिन फिर भी एक डर तो रहता है भी किसी टाइम भी नौकरी जा सकती है। ओके, तो मेरे को याद आता है सर भी इसका ना एक बुक पढ़ी थी सर मैंने, हु मूव्ड माय चीज। हाँ, यस, छोटी सी बुक है सर। यस, यस, तो आपको असेस रखना है मार्केट में क्या हो रहा है, हाँ, उसके अकॉर्डिंग पहले से ही तैयारी रखनी है। अडेप्ट योरसेल्फ, हाँ, पीएचडी है आपको कॉन्फिडेंस देगी वो, लेकिन आपको तैयारी पहले से रखनी है। अगर आपको लग रहा है भी अगले 2 साल में कुछ होने वाला है तो अभी से तैयारी रखो। ये मतलब पीएचडी एज अ डिग्री आपको नहीं बचाती, हाँ, आपका रेगुलर अपस्किलिंग आपको बचाता है। यस सर, यस सर, वो करते रहना है। जैसे कि अभी भी साथ साथ पढ़ाई कर रहा हूँ सर, कुछ ना कुछ पढ़ते रहता हूँ, कोई कोर्स ऑनलाइन लगाता रहता हूँ। अच्छा अतिंदर, ये जो हमारी इंटरेक्शन है इसको सुनने वाले ऐसे बहुत से मेरे स्टूडेंट हैं जो भी बीटेक में, जो अंडर ग्रेड हैं, आप उनके लिए भी बहुत सिंपल टर्म्स में बताएं कि आपका एरिया ऑफ वर्क क्या है, किस फील्ड में काम कर रहे हैं आप? ओके, सो ऐसा होता है भी जो जितने भी फिजिकल प्रोसेस होते हैं उनके पीछे एक फिजिक्स होती है। तो हम उसको जब लिखते हैं मैथमेटिकल टर्म में तो एक इक्वेशन बनती है जिसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कुछ तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होती है जिसको हम मैथमेटिकली हाथ से सोल्व कर लेते हैं, बाउंड्री कंडीशन लगा के वो सोल्व हो जाती है। कुछ होती है जो जिनका भी मैथमेटिकल सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, एनालिटिकल सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो उनको सोल्व करने के लिए हम पूरी डोमेन को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर उसको डिस्क्रिटाइज करके एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, जिसको हम लिखते हैं ax = b, जिसको मैथ में हम पढ़ते भी हैं, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। अब इस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने के लिए अलग अलग मेथड है, उसको भी यूज किया जाता है। तो इस पूरी डोमेन को हम कहते हैं CFD, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। तो ये मेरा सर फील्ड ऑफ वर्क है। ओके अतिंदर, लास्ट मंथ आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद प्रोफेसर राम गोपाल राव, who has been director of IT Delhi, and presently he is a group vice chancellor of BITS group. Okay. I asked him about professors and PhDs, how they can be good entrepreneur because they have everything with them. I mean, they have knowledge and everything. And he told, like in India, most of the entrepreneurial ventures are generic. They are not intellectual property based, product based कंपनीज। यस सर, आप एक ऐसी फील्ड में काम करें जिसमें आप सुपर स्पेशलिस्ट हैं और कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है और फिर उसके ऊपर एंटरप्रेन्योरियल मॉडल आप बनाएं। बिल्कुल सर। व्हेन वी टॉक अबाउट फ्लिपकार्ट, और नो डाउट दे हैव डिसरप्टेड द मार्केट, दे हैव क्रिएटेड इकोसिस्टम, बट दे आर जेनरिक ई-कॉमर्स कंपनीज। इट इज नॉट लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड प्रोडक्ट। नो, आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें एंटरप्रेन्योर का जो अपॉर्चुनिटीज है वो किस फील्ड में है? तो सर मैं 2 साल हो गए सर काम करते हुए। मेरे को काफी अच्छी तरीके से समझ आ रहा है भी कैसे इन्होंने, जो करंट कंपनी है उसको भी 10 साल हो गए काम करते हुए इस फील्ड में। तो 10 साल पहले भी वो उसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं था, 10 साल के अंदर उसने 10 प्रोडक्ट बना दिया है। और मेरे को समझ आ रहा है हाउ माई जो करंट CEO है वो कैसे उसको कर रहा है। एंड बहुत ही सर सिंपल है, आपको इंडस्ट्री की एक प्रॉब्लम उठानी है जो इंडस्ट्री को सॉल्व नहीं हो रही, और उसको मैथमेटिकली CFD के थ्रू उसको सोल्यूशन देना है। ठीक है, अगर आप ये करने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो आप एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उनके लिए क्रिएट कर देते हो। ओके, तो आप उसके ऊपर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी इसमें जो रुकावट ये आती है सर, आपको सबसे पहले उधर से डाटा चाहिए होगा इंडस्ट्री की तरफ से। इंडस्ट्री आपके ऊपर ट्रस्ट करे, वो मेरे को लगता है PhD या फिर आपका अगर प्रोफेसर पोजीशन पे अगर कहीं पे हो तो डाटा एक्वायर करना आपके लिए आसान हो जाता है। ओके, that's the way to enter into this one. Okay, in this field. Now Atinder, when I interact with the people like you, I get the opportunity to get information, first hand information about the countries where you are working. So I will request you to tell my viewers about the country in which you are and how is that, I mean what kind of country is that for Indian students? अगर कोई उस country में जाके opportunity explore करना चाहते हैं, because it is not that all the Indian students should aspire to be in US or Canada or UK, which historically we see as big countries. Why not very beautiful small countries where there can be opportunities but people are not aware? So I'll request you to tell my viewers about the opportunities in that country
and I want you to focus on, you know, how they can get the opportunities, and long term stay if they want, like PR and all, how comfort their stay is gonna be, how safe the stay is going to be, and overall life, you know, and work life balance if they work there. उन पर्सपेक्टिव से उन पॉइंट्स के ऊपर आप थोड़ा सा बताएं. ओके सर, तो आई बीन लिविंग इन ऑस्ट्रिया फॉर 2 years नाउ, और मेरे को लगता है भी ऐसा फील भी हो रहा है, और नंबर्स भी ये शो करते हैं सर कि ऑस्ट्रिया सेफेस्ट कंट्री है. ओके. सबसे लोएस्ट क्राइम रेट है यहाँ पे सर. अगर आपको रात को 12 बजे भी कहीं घूम रहे हो सर, तो कोई डर नहीं है कहीं से यहाँ. इट्स वेरी सेफ. एंड हाउ बिग इज द कंट्री इन टर्म्स ऑफ मे बी पॉपुलेशन और समथिंग? मेरे ख्याल से पंजाब और हरियाणा मिला लोगे सर, Okay. कितना कंट्री है सर. ओके. इससे भी छोटा ही होगा सर. और पॉपुलेशन तो सर और कम है. जिस सिटी में मैं रह रहा हूँ, उस सिटी की पॉपुलेशन सर 35,000 है. ओके. और वो 9th बिगेस्ट सिटी है. ओह. तो आप उससे 9 बड़ा कर लो तो ज्यादा लोग नहीं है सर वहाँ पे. दूसरा सर मेरे को ये लग रहा है भी अपॉर्चुनिटी, स्टडीज की अपॉर्चुनिटी सर वहाँ बहुत है. आप जिस भी सिटी में जाओ सर, वहाँ पे यूनिवर्सिटी है. अच्छा. That may be quite old university and good university. यस सर. मेरी छोटी सी सिटी है सर, 9th बिगेस्ट सिटी है, लेकिन छोटी सी सिटी है, इसमें भी यूनिवर्सिटी है. एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, एक MBA के लिए यूनिवर्सिटी है. ओके. तो स्टडीज के लिए बहुत बेटर है. मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो इंडियन ब्रांच में काम करते थे, यहाँ पे सेल्स में. इंडियन सेल्स डिपार्टमेंट बंद हुआ, उसने एडमिशन लिया स्टायर में, और वहां से स्टायर की कंपनी में, जो स्टायर का ऑफिस है, वहां इंटर्नशिप स्टार्ट कर. ओके. तो हाउ दे कम फ्रॉम इंडियन ऑफिस टू स्टायर ऑफिस, ऐसे भी के लोग आए. ओके. आपको मतलब बेसिकली मेन इशू जो आता है लैंग्वेज का, ऑस्ट्रिया और जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज कंपलसरी है शायद वहाँ पे स्टडीज के लिए, क्योंकि मैंने वहाँ स्टडीज नहीं की है, तो शायद ये पाथ मेरे लिए अननोन है. बट विदाउट एनी लैंग्वेज यू आर वर्किंग देयर, राइट? आपने तो नहीं सीखा कुछ अभी तक? नहीं सर अभी. पर लेकिन वहाँ पे रूल है, अगर मेरे को 3 साल बाद और काम करना है वहाँ पे, तो मेरे को मिनिमम लेवल ऑफ जर्मन सीखनी पड़ेगी. ओके. तो लैंग्वेज कंपलसरी है सर वहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए. ओके. एंड व्हाट वी कॉल एज PR और समथिंग लाइक दैट? सर सब कुछ होता है, लेकिन टाइम के साथ होता है. Okay. और लैंग्वेज स्किल को आप अपग्रेड करते हो. जैसे अगर सिर्फ जॉब करनी है तो आपको बेसिक लैंग्वेज चलेगा आपका. लेकिन अगर आपको PR के लिए अप्लाई करना है या सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है, तो आपको लैंग्वेज प्रॉपर मेरे ख्याल से B1 B2 लेवल आपको करना पड़ेगा. ओके. सो अतिंदर, मेरे को लगता है मोर और लेस आई हैव टेकन कपल ऑफ इंफॉर्मेशंस व्हिच आई वांटेड टू टेक फ्रॉम यू. नाउ एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू ऑल द लिसनर्स? You know, you have 10 to 15 years of your post degree experience now. आप as a professional, तो क्या एडवाइस करेंगे आप? तो सर रिसेंट मेरे से ना कुछ बीटेक वाले बच्चे बात कर रहे थे करियर गाइडेंस के लिए. तो मैंने उनको बोला है कि थोड़ा सा बैठ के एक बार सोचो भी किस डायरेक्शन में जाना है. लोगों को क्लियर नहीं होता सर क्या करना है जिंदगी में. हमें भी क्लियर नहीं था, हमें भी PhD करते करते क्लियर हुआ है कुछ भी इस डायरेक्शन में जाना है. और कुदरती ऐसा भी उस डायरेक्शन में ऑलरेडी मूव कर रहे थे. पर मैं कहूंगा भी आप बैठ के आराम से सोचो भी क्या करना है. डिसाइड करो भी. जैसे मेरे साथ एक एरोस्पेस का लड़का बात कर रहा था, उसको क्लियर नहीं था, उसने प्रोपल्शन में जाना है कि ड्रोन वाले फील्ड में जाना है, कहाँ जाना है. तो मैंने उसको यही एडवाइस किया भी बैठ के सोचो भी एक बार कि किस डायरेक्शन में मूव करना है, और फिर उस डायरेक्शन के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी शुरू करो. गेट की तैयारी करो. गेट में अगर एडमिशन नहीं होता, साइड बाय साइड फॉरेन की एडमिशन के लिए भी तैयारी मतलब स्टार्ट रखो. अगर गेट का एग्जाम अच्छा नहीं जाता, तो यू शुड हैव अनदर डोर ओपन. फॉरेन का कोई भी इंस्टीट्यूट जहाँ पे अच्छे सीट्स मिल जाती हैं, वहाँ पे आराम से तो वहाँ अप्लाई करो, और स्कॉलरशिप के साथ अप्लाई करो. और पहले से तैयारी करोगे तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगे. अगर पहले से तैयारी करके नहीं जाओगे, एकदम गेट का स्कोर अच्छा नहीं गया, तो फिर हफड़ा दफड़ी में कुछ भी मिल जाएगा. तो थोड़ा सा ध्यान से आराम से बैठ के तैयारी करो और प्लान करके चलो. ओके. फील्ड का और बाहर एमटेक करने का. Okay, wonderful. So Atinder, with that we come to an end of this session, and I must thank you once again. You came and you shared your information, and believe me, Atinder, these kind of interactions are very, very helpful for students. They listen to you, and you never know like which student or which candidate will get what advantage after listening to some important, you know, input from your side, and they will make a career in that particular direction. So I will keep on again popping up and keep on interacting with you as you proceed forward in your career. And that, you know, will keep on adding some new perspective to this entire career journey. Not only your journey, but also in terms the inputs which these viewers will get. So thanks a lot for your time and your visit. Thank you, sir. Thank you.